तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। जिस पर पूरा पेट सी, सो चलैर जाए। चतराई स्यानपा कितै काम ना आईऐ। तुठा साहिब जो देवै, सोई सुख पाईऐ। जे लख कर्म कमाई है, किछ पवै ना बंदा। जन नानक कीता नाम धर, मोर छुटिया धंधा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गरीब निवाज दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की कृपा रहमत हुई है। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी दे भाग सवले ने, आप बड़ भागे हो जो सतगुरु महाराज जी की निकी गोद का आनंद मान रहे हो। जिसनों बख्श लै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गाओ। जिसते सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं, वही सतगुरां दे रस नूं सुन ते गा सकता है। सो आओ धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का एक छंद, उसकी विचार आप जी ने श्रवण करनी है जी। सेवा करो करना नित की जह, सेव चार पदार्थ पाइए। नाम लय जम त्रास मिटे, कली काल नसे हर शरण सिधाइए। लोक परलोक सभी सुधरे हर, भगत प्राप्त होए निधइए। दास गोविंद फतेह सतगुर की, आस प्रभ छोड़ अवल कत जाइए। सो महाराज जी कहते हैं कि मनुख तू प्रभु नूं छड्ड के और किधर नूं जा रहा है। जेड़ा प्रभु दया का खजाना है, जिसकी दया कभी खत्म ही नहीं होती। आम मनुख किसी समय दयालु हुंदा है, किसी समय कठोर हुंदा है, किसी समय उसकी वृत्ति देण भी हुंदी है और किसी समय उसकी वृत्ति खोण भी हुंदी है। मनुख का जीवन दो रंगां विच बतीत हुंदा है, कदी दया विच ते कदी कठोरता विच। मनुख की दया एक छपड़ी तो ज़्यादा नहीं हुंदी। महाराज कहते हैं कि प्रभु की दया तो सागर है जो कभी खत्म ही नहीं। मनुख की दया छपड़ी तो वध नहीं हुंदी, प्रभु की दया वो तो एक सागर है जो कभी खत्म ही नहीं हुंदी, मुकदी ही नहीं। गुरु की बाणी राज जोग का मार्ग है। राज भाग खड़ा है दो पदार्थ, जोग भी दो पदार्थों के ऊपर खड़ा है। वो दो पदार्थ होने ते राज चलता है, ते दो पदार्थ होने ते जोग चलता है। राज दे नाल संसारिक दुख ते जोग दे नाल परमात्मा का आनंद, नाम का आनंद। अजिहा देखने में आता है कि मनुख बाहरों तो माला माल है ते अंदरों बिल्कुल कंगाल है। कारण दो पदार्थ बाहर के तो उसके कोल हन, पर अंदर वाला एक भी नहीं। अजिहा भी देखने में आया है कि दो पदार्थ अंदर के तो हन ते बाहरों बिल्कुल कंगाल नहीं।
ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ख्वाब ਲਿਆ, ਉਸਦਾ ख्वाब ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ। ਜੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਦਾਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਦ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
सब कुछ विधि विधान के मुताबिक है। जिवें इट्टां नूं विधि विधान के मुताबिक रखिए तो महल बनता है, गैर विधानिक ढंग नाल सुट्टीए तो दीवार भी नहीं खड़ी हुई, महल का बनना कितने है। जिंदगी क्या है? तरतीब का जाहूर, सारे तत्तां का विधि विधान के विच आ जाना, यह है जिंदगी। मौत क्या है? इन्हीं अजाजा का परेशान होना, इन्हां तत्तां का बिखर जाना। बखेरन वास्ते विधि विधान की लोड़ नहीं पैंदी, किसी चीज़ नूं तोड़ना है सीखण की लोड़ नहीं पैंदी। हाँ, पर जे कुछ बनाना है तो सीखण की लोड़ पैंदी है, सीखना पैंदा है। बाबा फरीद जी कहते हैं कि जिहड़ी चीज़ मैं 6 महीनों में बनाई है कि उसनूं मिटाउण वास्ते भी 6 महीने लगणगे। इस वास्ते कहते हैं कि बर्बादी बड़ी आसान है, मिटाउणा बड़ा आसान है। एक बूटा मैं लाया है जमीन ते, 5-7 सालों तो बाद वो फलीफूत होया है, फल देन लगा। कि वो दरखत कट्टन लग्या 7 साल लगणगे? नहीं, ये तो सिर्फ थोड़े मिनटां की गल है। उस दरखत नूं कट्टन लग्या कुछ मिनट ही लगने हैं। जगत विच कुछ भी बनाउणा होवे तां तरतीब की लोड़ पैंदी है, विधि विधान की लोड़ है, मेहनत की लोड़ है। कुछ भी मिटाउणा होवे तां कोई भी मिटा सकता है। बैरूनी संपन्न जीवन नूं कहते हैं राज, ते अंदरूनी संपन्न जीवन नूं कहते हैं जोग। देखण विच आया है कि संसार विच बड़े बड़े राजे हुए हैं, जोगी नहीं सन। दुनिया विच विशांतर जोगी रहे हैं पर राजे नहीं सन। गुरमत जो है वो राज जोग का मार्ग है। मेरा सिख राजा होवे, मेरा सिख जोगी हो, ते मनुख तू किरत कर, उदम कर, मेहनत कर, तू राजा बन। किरती कर, अपने मन नूं अकिरत कर ताकि तू गुरमुख बने, जोगी बने। अर्थ कहते हैं कि धन नूं ते काम कहते हैं कामनावां नूं। संसार विच मेरी कोई भी कामना है, मैं कोई भी चीज़ लेना चाहता हाँ तो धन तो बिना नहीं मिलेगी। संसारिक चीज़ वास्ते सानू धन की लोड़ पैंदी है। इस वास्ते जो कले जोगी हैं उन्हां दी साधना ये भी है कि कामनावां घटाओ, क्योंकि कामनावां धन तो बिना पूरियां नहीं होंगी। कामनावां धन तो बिना पूरियां नहीं होंगी। एक सोहना मकान चाहिए है तो धन तो बिना नहीं बनेगा। सुंदर कपड़े चाहिए, सुंदर माहौल चाहिए है, धन तो बिना नहीं मिलेगा। कामनावां घटाओ, लोड़ घटाओ। इस ऊपर गुरबाणी ने जोर नहीं दिता, कारण ये जो तन है इसकी कोई भी लोड़ अंदरों पूरी नहीं होगी, बाहरों ही होगी। मन में जो कुछ चाहिए है तो बाहरों कदे भी पूर्ति नहीं होगी। इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, और किसे ही के तू मत ही जाए। महाराज कहते हैं सब किछ घर में बाहर ना है, बाहर टोले सो भरम भुलाए। मन की दौलत जो बाहर लभदा है तू भरम भुलेखे विच है। तन की दौलत जो अंदर लभदा है तो अज्ञानता दे विच है। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमान करते हैं कि वो जो दया का सागर है उसकी सेवा करनी है। उन परमात्मा की सेवा की है कि असी जो है निराकार उसनों असी पानी पिलावांगे, जिन्हें 7 समुंदर बनाए हैं कि उसनों असी भोजन खिलावांगे, जो निराहार है ते निराकार है, फिर उसकी असी सेवा की करें। बड़ी सुंदर पंक्ति है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की। हर की टहल कमावनी जपिया प्रभ का नाम, बस यही है। इस वास्ते कहते हैं कि हरि की टहल बड़ी औखी है।
सब कुछ करना बड़ा सौखा है, बस औखा है तो उसका नाम जपना, उसकी सेवा करना। वो करना का सागर है। परमात्मा इन्ना दयालु है कि वो मनुख दे हर उदम नूं, बाहर की किरत नूं वो भाग लगा दिंदा है। कहते हैं कि हर कदम की सफलता का वसीला परमात्मा आप है। जेकर वो वसीला ना बने तो किरत सफल नहीं हुई, आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। एक कारण उसमें इस तरह भी बयान करता है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्त उजल होते हैं, खिले नहीं कली बन के रह गए। एक कमल के फूल सूरज दियां किरनां ना मिले तो नहीं खिलणगे, पूर्ण तौर से हवा के झोंके ना मिले तो नहीं खिलणगे। एक कमल नूं खिलने लई जिन्ने वसाइल चाहिए हैं उन्ने होने चाहिए हैं, ताही कमल का फुल खिल सकता है। इसी तरह मनुख नूं राजा होने वास्ते, जोगी होने वास्ते कुछ वसाइल चाहिए हैं, ताही वो राजा ते गुरमुख बन सकता है। मनमुख नूं जोगी होने वास्ते कुछ वसाइल चाहिए हैं। जे बात जुदा है कि वो तामीर ना हो और जहन में कुछ ताजे महल होते हैं। अजिहा कोई दिमाग नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई ताजमहल ना हो। शाहजहां को वसीला मिल गया, उसने ताजमहल जमीन उत्ते खड़ा कर दिया। कई ये वसाइल प्राप्त नहीं होंगे, ताजमहल दिमाग में रह जाते हैं। कामनावां की पूर्ति हो सके वसीला तो चाहिए है। वसीला कौन है? कलगीधर पातशाह कहते हैं कि वसीला वो परमात्मा है। तन के रोग मिट जाते हैं, मन का सोग मिट जाता है। रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निपटानी। जिथे धन के बरकत पै जाती है वो वसीला बन जाता है। जे वो वसीला ना बने तो कोई धनवान नहीं बन सकता, कोई गुणवान नहीं बन सकता। वो वसीला ना बने तो मनुख अंदरों जोगी नहीं बन सकता। महाराज कहते हैं कि लोक सवरदा है राज ना, और परलोक सवरदा है जोग ना। महाराज कहते हैं कि असी इस तरह के प्रभु को छड़ के और कितने जा रहे हैं। तो लोक सवार दिंदा है, परलोक सवार दिंदा है, गुरमुख बना दिंदा है, राजा बना दिंदा है। धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं काल जाल जम जोहे ना साकै सच का पंथा फाटे। एक आकाश है, एक अकाल है, एक काल है। काल में क्या है? स्वतंत्रता। अकाल में क्या है? मुक्ति। उंज काल का मतलब है समय तो रहत। काल का मतलब है जो समय विच है। काल संस्कृति का लफ्ज है, इसके अर्थ हैं समा। अकाल समय विच नहीं है। ये तन काल के अंदर है, समय के विच है, समय विच जम्मिया है, समय विच मरेगा। समा इसनूं खत्म कर देगा। जो रस है बेरस हो जाता है, जो जीवन है वो मरण हो जाता है, जो सुंदर है वो करूप हो जाता है, जो हस रहा है वो रोन लग पैंदा है। इस वास्ते कहते हैं समा दो रंगी है, काल दो रंगी है। ये दो रंग असीं अपनी जिंदगी विच भी देख सकते हैं। जीवन है, यही जीवन एक दिन मरण विच बदलता है। खुशी है, खुशी गम विच बदलती है, सुख दुख विच बदल जाता है। अकाल रसता है, बेरस नहीं है। जीवनता है, मरण नहीं है। अकाल आनंदता है, दुख नहीं है। अकाल महान खेड़ाता है, गम नहीं है। जिवें एक सिक्के के दो पहलू होंगे, काल के ये दो रुख हैं। इस जमीन विच बड़े बड़े आसमान दफन पे हैं। आसमान की तरह जिन्हां दी बुलंदी है, आसमान की तरह जिन्हां दी शोहरत, आसमान की तरह जो फैले हुए हैं, अज जमीन विच कबर की तरह। कल तक
आसमान में सूरज की तरह सन, पर जमीन में कबर की तरह। कल तक आसमान में चंद्रमा की तरह सन, पर जमीन में मिट्टी की तरह। मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। ये जमीन बड़े बड़े आसमानों को खा गई। ये तन मनुख काल तो नहीं बचा सकता, समय तो नहीं बचा सकता, क्योंकि समय विच बनया है। जो बनया है, बनया समय विच है, तो समा इसनूं मिटा देगा। इसे तन के अंदर मन है जो समय विच नहीं बनया, जो अकाल तो सिद्धा आया है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तन काल तो आया है, काल खा जाएगा। मन अकाल तो आया है, तन की संगत करके काल विच भटकदा है। धर्म की साधना, कथा, कीर्तन, धार्मिक उपदेश के संदेश इस तरह ही है कि तन नूं काल खत्म कर देगा। कि तन चाहे गुरु पीर पैगंबर अवतारा देवत्या दे ही क्यों ना हो, काल खा जाता है। कलगीधर पातशाह फरमान करते हैं, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। एक काल का तमाशा है। समय विच ब्रह्मा बनया है, 4 वेद उसने रचे, बड़ी प्रतिष्ठा देवत्या का सिरमौर, संसार का बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला काल विच बने। पर काल ने ब्रह्मे के तन को मिटाया, मन को नहीं। मन को तो कह सकते हाँ, इन्ना बड़ा ज्ञानी, उसका मन परमात्मा में लीन हो गया, उसका मन अकाल में लीन हो गया। तन को काल खावे, इस तो पहले मन अकाल में जुड़ जाए। इसनूं बाणी कहती है, जीवन मुक्त यह जिउंदिया जी मुक्त हो गए। कहत कबीरा जो हर ध्यावै, जीवन बंधन तोड़े। उसने जिउंदिया जी कर्मां के बंधन तोड़ दिते। उसने जिउंदिया जी दुख सुख के बंधन, पाप पुण्य के बंधन तोड़ दिते। सुतंत्र हो गया, मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। परमात्मा जिवें मुक्त है, उस मुक्त विच लीन हो गया। इसनूं गुरबाणी इंज कहती है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। तन खाक दे विच खाक होवे, उस तो पहला मन नूर दे विच नूर हो जावे। कहते हैं संपूर्ण हो गया। तन मिट्टी विच मिट्टी होवे, उस तो पहले मन जोत दे विच ज्योति स्वरूप हो जावे। उसनूं कहते हैं यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साथ। जीवन में यात्रा क्या है? यात्रा में की हुंदा है? एक पड़ाव आया, एक गया। एक वस्तु मिली, एक गया। कोई मिलया, कोई बिछड़ गया। सुख मिलया, दुख में बदल गया। खुशी मिली, गम में बदल गई। जवानी मिली, बुढ़ेपे में बदल गई। जन्म मिलया है, मरण में बदल गया। इसनूं कहते हैं यात्रा विच एक पड़ाव आया। मन जेकर काल विच लीन हो जाए तो गुरबाणी कहती है, मिलया हुए ना विछड़ै। संसार विच काल विच जो भी मिलया है विछड़ेगा। जेकर मन परमात्मा विच लीन हो गया, परमात्मा मिल गया, तो गुरबाणी कहती है उन विछोड़ा नहीं है। अक्सर अजिहा हुंदा है, तन नूं काल खा जाता है, क्योंकि काल ने बनाया है। मन अकाल विच लीन नहीं होता। यात्रा अधूरी रह जाती है। यात्रा अधूरी किसनूं कहोगे? मुसाफिर रास्ते विच है, अजे घर नहीं पहुंचे। तन का घर शमशान घाट है, अते मन का घर भगवान का घाट है। गुरबाणी तो सानू वाजा पे मारती है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। तू परदेश विच है, जो कुछ तेनू मिलया है रास्ते के पड़ाव हैं। परिवार मिलया है, धन संपदा मिली है, मान मर्यादा मिली है, प्रभुता मिली है, कुछ भी मिलया है
सब रास्ते दे पड़ाव हैं। जदों तेन परमात्मा मिल गया समझी अपने घरे आ गया कि तेनों अपना घर मिल गया। गुरबाणी वाजा मारती है, ये संसार तमाशा है, बनाना है फिर मिटा देना है। दरिया के कंढे कुछ मासूम बच्चे होंगे हैं, महल बनाते हैं, फिर खुशी खुशी आपे मिटा देंगे हैं। बड़े सोहने सोहने खिडौणिਆਂ नाल बच्चा खेडदा है, फिर आपे तोड़ दिंदा है। उसनूं बनाउण लग्गिया भी खुशी है, उसनूं मिटाउण लग्गिया भी खुशी है। संसार नूं बनाउणा है, वो परमात्मा आनंद विच ते मिटा दिंदा है, वो भी आनंद विच। आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। परमात्मा बहुत वड्डा है, तां उसदा खेल भी वड्डा है। इस वास्ते सानू आख्या गया है, अकाल नूं परमात्मा मनो, अकाल नूं ही गुरु मनो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी ही साडा गुरु है, बाणी विच ही सब कुछ है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। कलगीधर पातशाह कहते हैं कि काल इतना बलवान है कि काल ने जो कुछ भी बनाया है मिटा देता है। उसने अज तक जो कुछ बनाया है, कुछ जल विच है, कुछ जमीन विच है ते कुछ आसमान विच है। जीवन एक तीन तरह का मानते हैं, सागर का जीवन, धरती का जीवन, आकाश का जीवन। सतगुरु कहते हैं, जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौण कहाँ। काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। जो समय विच बने हम, समा सब नूं मिटा देंगे। ये प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम का नहीं कि मन परमात्मा तो बनया है तो परमात्मा में लीन हो जाओ। इस वास्ते साधना करनी पवेगी, जब तक करना पवेगा, तो ब्रह्म ज्ञानियों के वचनों की कमाई करनी पवेगी, ताकि मन जोत दे विच जोत हो जाए। फिर बाणी मोहर लाउंदी है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिस दिन तू प्रेम की मूर्त हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा, निर्भौ हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, उस दिन परमात्मा की खोज नहीं करनी पड़ेगी, परमात्मा तेरी खोज करेगा। साचे नाम की लागा भूख, उत भूखा खाए चलिए है दुख। जिस दिन सच्चे नाम की भुख पैदा हो गई, तो भोजन हर जगह पिया है, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदे है। प्यास नहीं लगी तो एक मनुख कर रहा है हाय पानी हाय पानी, इसका मंगना मंगना नहीं है। एक दूजा है जो बड़ा प्यासा है, रोम रोम ते आया है अते तरफ रहा है हाय पानी कहते तो दोवां इक्को जिहे पए हैं, पर जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह लोभी भी वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, पर जिसके अंदर नाम की भुख पैदा हो गई, वैरागी भी वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है। यकीन जानो, जमीन आसमान का फर्क है। एक जो हाय पानी कर रहा है, पानी इसकी लोड़ नहीं है क्योंकि प्यास ही नहीं। एक जो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, वाहिगुरु उसका जीवन है, उसकी जिंदगी है, उसके प्राण है। औ बलिहारा जाओ साचे तेरे नाम उठ। मैं सदके जाता हाँ, बलिहारे जाता हाँ तेरे इस नाम तो जिसके विच इन्ना रस इन्ना खेड़ा है। कारण कारण सबना का एको आवरना दूजा कोई नहीं। तू करता भी है, कारण भी है, और कोई दूजा नहीं। इस समय मैं तेरा ही भिखारी हाँ, और किसी का नहीं। असी सिर्फ उस वाहिगुरु सच्चे पिता तो ही मंगना है, और किसी को नहीं। साची लिव लागी है पितर सतगुर स्यो मन मानिया। सतगुर के शब्द विच जिवें मन मन गया, प्रभु के नाम विच लिव जुड़ गई, सुरत जुड़ गई, नाम की प्राप्ति हो गई। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भोजन फेरा। बहुत जन्मां दे विछड़े हुए हैं, ऐतकी तू रहमत कर। ओहो दयाल दर्शन दे अपना, ऐसी बख्श करीजा दया दे घर विच आ। अजिही बख्शिश कर, अपना दीदार दे, अपनी झलक दे ते अपने आप दे विच लीन कर लै। तो दास
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।